Hello everyone. Today I am here with the second part of our topic, decimals. In the last video we had learned what are decimals, pictorial representation of decimals, place value of decimals, conversion of fractions into decimal, addition and subtraction of decimals. In today's video we are going to learn the conversion of decimals into fraction and fractions into decimals also. After that we will learn multiplication and division, word problems in decimals, and also rounding of the decimals. So stay tuned. So first of all, we will take conversion of decimal into fractions. To convert decimal into fraction, first of all, count the number of decimal places. After that, ignore the decimal and write all the digits as numerator of the fraction. Now, in next step, write as many zeros after 1 in the denominator as there were decimal places in the decimal fraction. And now, reduce the fraction into the lowest form. Example से समझते हैं, फिर बिल्कुल clear हो जाएगा आपको. First example is 1.76. Now, first of all, we will remove this decimal. And how will we remove it? कैसे इसको हम whole number में change करेंगे? Decimal के नीचे हमने लिखना है 1 और decimal के बाद जितनी places हैं उतने 0. 1 and 2. We have two places after a decimal, so we will put 2 zeros here. Decimal के बाद 2 places हैं, तो हमने 2 zeros लगाई यहाँ 1 के बाद denominator के लिए. So now this decimal has been removed. Now we will reduce it to the lowest term. इसको हम lowest term में reduce करेंगे अब. तो even number है, तो 2 से करेंगे हम इसको divide. 2 8s are 16 and again 2 8s are 16. This is 100 divided by 2 is 50. We will further reduce it. 2 4s are 8, 2 4s are 8, and 50 divided by 2 is 25. So this is 44 upon 25 because it cannot be reduced further. इसको हम आगे और reduce नहीं कर सकते. So this is 44 upon 25. Now we will divide it and change it into mixed fraction. Improper fraction में नहीं छोड़ते हैं इसको, इसलिए mixed fraction में change करेंगे. 25 ones are 25 and now subtract, it's 19. So 1.76 is equal to 119 by 25. One whole number and 19 by 25 is the fraction. So इस तरह से हमने decimal को fraction में change किया है, fraction में convert किया है. Next question is 43.298. Again we will remove this decimal. In the place of decimal, 1 will be written and 3 places are after decimal. So 3 zeros will be put here. Now reduce it to the lowest term. 2 2s are 4. 2 1s are 2. 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 9s are 18. And this will be 500. Right? 2 5s are 10 and 2 zeros. Now, can it be divided further? No. This cannot be divided further. So, we will divide it and change it into mixed fraction. Divided by 500. 5 4s are 20 and 2 zeros. Now 1 6 4 and bring this 9 down. 5 3s are 15 and 2 zeros and remainder is 149. So our answer is 43 whole number. Remainder is our numerator and 500 is denominator. जो यहाँ denominator वही denominator यहाँ है. So 43.298 is equal to 43 149 by 500. 43 whole number, 149 by 500 fraction. Now one more example. Now you can see here after decimal digits are 400. अब हम दो काम कर सकते हैं, या तो सेम वे में हम यहाँ पे डेसिमल के नीचे 1 लगाएं और डेसिमल रिमूव हो गया और 3 प्लेसेस मान के 3 zeros पुट कर दें, और अदरवाइज ये डेसिमल के बाद नंबर के बाद जितनी भी जीरोस गिवन होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उनको ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं. बट वी विल गो लाइक दिस ओनली. सो 2 zeros will be removed as it is. Now 2 5s are 10 and 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4. So
462 upon 5. 462 divided by 5. 5 nines are 45. 1 to bring down 2. 5 twos are 10. Remainder is 2. Now answer is 92 is whole number and remainder is 2, which will become numerator, and 5 is the denominator. So 92.400 is equal to 92 2 by 5. 92 2 by 5. So this way we have convert decimal into fraction. Now next we will take conversion of fraction into decimal. First example is 1345 upon 10. क्या करना होता है हमने? Simply we have to count the number of zeros. उतनी ही places right से count करते हुए हमने decimal लगा देना है. अब जैसे ये 1345 है और यहाँ denominator में कितनी zeros हैं 1 के बाद? Only 1. So we will count only one place from right and put decimal. एक ही place को count करेंगे और यहाँ decimal लगा देंगे. That's it. हो गया. बस इतना ही करना था. Now अब यहाँ देखेंगे 50 upon 1000. अब यहाँ 3 zeros हैं लेकिन ऊपर डिजिट सिर्फ 2 हैं. 3 zeros हैं डिनोमिनेटर में लेकिन ऊपर डिजिट सिर्फ 2 हैं. तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो भी बहुत सिंपल है. सबसे पहले 50 हम एज इट इज लिखेंगे. अब हमें 3 प्लेसेस के बाद हमें डेसिमल लगाना है. तो हम लेफ्ट साइड में जीरोस ऐड करेंगे. राइट में जीरोस ऐड नहीं करनी है, हमने लेफ्ट साइड में जीरो ऐड करनी है. तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस साइड जीरो इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी डेसिमल की. तो 3 प्लेसेस चाहिए थी हमें डेसिमल के लिए. तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे और होल नंबर हमारा यहाँ पे 0 होगा. तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.050. 3 प्लेसेस चाहिए थी हमें यहाँ डेसिमल के बाद. लेफ्ट में हमने 0 ऐड करके 3 प्लेसेस बना दी. ठीक है, तो आंसर इज 0.050. नाउ नेक्स्ट इज 6 अपॉन 125. अगर तो 10 या 10 के मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर है तब तो हमारे लिए बहुत इजी है. लेकिन यहाँ तो नंबर कुछ और है, 10 का मल्टीपल नहीं है ये. तो हमें क्या करना है? हम इसको ट्राई करेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 का मल्टीपल बनाने की. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8. लेट्स चेक. 8 5s are 40. 8 2s are 16 plus 4 20. 8 1s are 8 plus 2 10. तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर हमें मिल गया 1000 और 6 8s are 48. राइट, सेम वही सिचुएशन है. 1 के बाद 3 zeros है. दैट मीन्स हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 0 होल नंबर 0 रहेगा और 3 प्लेसेस बनाने के लिए एक 0 यहाँ ऐड करेंगे और उसके बाद ये नंबर. तो 6 अपॉन 125 इज इक्वल टू 0.048. लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखा था. तो अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल्स. डेसिमल्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अब हम वो सीखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज 37.6 मल्टीप्लाई बाय 45. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमने डेसिमल को इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना डेसिमल को. और जैसे होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे. सबसे पहले हम वही करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नंबर्स विदाउट डेसिमल and we will multiply it. 6 5s are 30. 5 7s are 35 plus 3 38. 5 3s are 15 plus 3 18. Now we will multiply by 4. 6 4s are 24 and 4 7s are 28 plus 2 30. 4 3s are 12 plus 3 15. Now we will add it. 8 plus 4 12. 8 plus 1 9. 5 plus 1 6 and 1. अब डेसिमल का रोल आएगा. अब हमने दोनों नंबर्स में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं वो काउंट करनी है. अब यहाँ तो एक ही नंबर में डेसिमल है और वो भी सिर्फ 1 प्लेस है डेसिमल के बाद, है ना, सिर्फ 1 प्लेस है. तो यहाँ पर हम 1 प्लेस के राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 1 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे.
तो हमारा आंसर क्या आया? 1692. Right? Next example is 145.28 multiplied by 7.5. Again, we will ignore the decimals and multiply them just as whole numbers. बिल्कुल whole numbers की जैसे हमने इनको multiply कर लेना है. 5 8s are 40, 5 2s are 10 plus 4 14, 5 5s are 25 plus 1 26, 5 4s are 20 plus 2 22, 5 1s are 5 plus 2 7. Now we will multiply by 7. 7 8s are 56, 7 2s are 14 plus 5 19, 7 5s are 35 plus 1 36, 7 4s are 28 plus 3 31, 7 1s are 7 plus 3 10. Now we will add them. 0, 6 plus 4 10, 9 plus 6 15 plus 1 16, 6 plus 2 8 plus 1 9, 7 plus 1 8, 0 and 1. Right? ये हमने नॉर्मली जैसे होल नंबर्स को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ वी विल काउंट द डेसिमल प्लेसेस इन बोथ द नंबर्स. दोनों नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस को हमने काउंट करना है. तो फर्स्ट नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1 2. 2 प्लेसेस यहाँ है और 1 यहाँ है. टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. तो हम राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 3 प्लेसेस, देन वी विल पुट डेसिमल 1 2 3 एंड हियर विल द डेसिमल कम. सो 145.28 multiplied by 7.5 is equal to 1089.6. 89.600 is equal to 0.6 only. So our answer is 1089.6. What will we do if we are multiplying the number 10, 100, 1000 ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या करना है? ये तो बहुत ही सिंपल होता है. क्या करेंगे? ये नंबर होल नंबर की जैसे हम लिख देंगे. अब जितनी जीरोस हैं यहाँ पर डेसिमल को उतना राइट साइड हमने शिफ्ट कर देना है. यहाँ एक ही जीरो है तो डेसिमल को 1 प्लेस हमने शिफ्ट करना है. मतलब अभी 3 से पहले था डेसिमल, शिफ्ट होके वो 3 के बाद आ जाएगा. तो ये 483.7 विल बी आवर आंसर. 1 प्लेस को राइट साइड शिफ्ट कर दिया हमने, डेसिमल को 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट कर दिया हमने. तो बस इतना ही करके हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम ये नंबर लिखेंगे 620576. अब डेसिमल को यहाँ 3 जीरोस हैं तो डेसिमल को 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट करना है. 1 2 3 मतलब यहाँ डेसिमल आएगा. तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हमारा आंसर 620,576 होगा. ये डेसिमल के बाद जीरो लगाएं ना लगाएं इट्स द सेम ओनली. हमें यहाँ डेसिमल लगाने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज आवर आंसर. Now this question is for you. 2.3 multiplied by 1.5. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. Now next we are going to take division in decimals. Decimals में डिवाइड कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं. Question is 82.17 divided by 0.9. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा डिवाइड करते हुए, जब दोनों हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, डिविडेंड और डिवाइजर जब दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं, उस केस में क्या करना है हमने डिवाइजर को पहले हम होल नंबर में चेंज करेंगे डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करके. क्या करेंगे? ये डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे 1 प्लेस और उसके साथ ही हमें डिविडेंड के डेसिमल को भी शिफ्ट करना होगा. मींस डिविडेंड और डिवाइजर जितनी प्लेसेस हम डिवाइजर में शिफ्ट कर रहे हैं उतनी ही प्लेसेस हमने डिविडेंड में भी शिफ्ट करनी है. तो ये क्या नंबर बन जाएगा हमारा? 8217 डिवाइडेड बाय ये 0.9 था, 1 प्लेस हमने डेसिमल शिफ्ट करा तो ये 9 बन गया. 9.0 इज इक्वल टू 9. और यहाँ क्योंकि हमने 1 प्लेस शिफ्ट किया था तो डिविडेंड में भी हमने जब डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट किया तो ये डेसिमल 1 और 7 के बीच में आ जाएगा. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 821.7 डिवाइडेड बाय 9. डेसिमल के बिल्कुल ऊपर हमने यहाँ डेसिमल लगा देना है. 9 से डिवाइड करेंगे. 9 9s are 81. यहाँ 9 ये 81 माइनस करा तो ये 1. नाउ ब्रिंग दिस 1 डाउन. 9 1s are 9 माइनस 2 आया. नाउ ब्रिंग दिस number down, bring this decimal number down.
यहाँ हमने डेसिमल इसीलिए लगाया था बिल्कुल डेसिमल के ऊपर कि डेसिमल नंबर जब हम लेके आएंगे नीचे तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी डेसिमल के बाद ही आएगा. 9 3s are 27. So our answer is 91.3. 82.17 divided by 0.9 is equal to 91.3. तो क्या हमने ध्यान रखना है, जब हमें दोनों नंबर्स में डेसिमल गिवन है उस केस में हमें डिवाइजर को होल नंबर में चेंज करना है. कैसे चेंज करना है? डेसिमल को शिफ्ट करके. यहाँ पे सिर्फ 1 प्लेस थी डेसिमल के बाद, तो हमने 1 प्लेस शिफ्ट किया डेसिमल को, और जितनी प्लेसेस हमने डिवाइजर में शिफ्ट करी हैं उतनी ही प्लेसेस हमने डिविडेंड में भी शिफ्ट करनी है. तो यहाँ पर हमने डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट करा तो 82 से क्या बन गया हमारा होल नंबर? 821. सो दिस नंबर बिकम्स 821.7, और फिर उसके बाद उसको हमने 9 से सिंपली डिवाइड कर दिया. डेसिमल के बिल्कुल ऊपर डेसिमल आना चाहिए, और नॉर्मली हमने डिवाइड करा और हमारा आंसर आ गया 91.3. सो अगर आप डिवीजन अच्छे से करना जानते हैं तो डेसिमल में आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है, और कोशेंट में आपने डेसिमल कहाँ लगाना है. डिविडेंड के बिल्कुल ऊपर आपने कोशेंट में डेसिमल पुट करना है. अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको डेसिमल में डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट एग्जांपल इज 42.8 डिवाइडेड बाय 100. तो इसे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट करके हमें आंसर मिल जाएगा. मल्टीप्लिकेशन में हमने डेसिमल राइट साइड शिफ्ट किया था, और डिवीजन में हम डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. जितनी जीरोस हैं उतनी ही डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होंगी. तो यहाँ 2 जीरोस हैं, तो हमें सबसे पहले हमने इसको विदाउट डेसिमल लिख दिया. तो डेसिमल को हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, ये 1 और ये 2. तो हमारा यहाँ डेसिमल आएगा. 100 से डिवाइड करने के बाद यहाँ डेसिमल आएगा, और हम डायरेक्टली डेसिमल से आंसर नहीं लिखते हैं, तो होल नंबर हमें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए. तो यहाँ कुछ भी होल नंबर नहीं है, तो वी विल पुट 0 हियर. तो 42.8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.428. दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5. आपको हिंट दे देती हूँ, आपको डिवाइजर को होल नंबर में चेंज करना है डेसिमल को शिफ्ट करके, और जितनी प्लेसेस आप डिवाइजर में शिफ्ट करेंगे उतनी ही प्लेसेस आपने डिविडेंड में भी शिफ्ट करनी है. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक वर्ड प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज, इन अ हाइकिंग ट्रिप हाइकर्स नीडेड 1.75 liters of water every day. If the hiking lasted for 5 days, how much water they needed in all? हाइकर्स को डेली 1.75 लीटर्स पानी की जरूरत पड़ती थी. अगर हाइकिंग 5 दिन तक चली तो उन्हें टोटल कितने पानी की जरूरत पड़ी, वो हमने बताना है. वाटर नीडेड डेली, हाउ मच? 1.75 liters. नंबर ऑफ डेज ट्रिप लास्टेड, कितने दिन ट्रिप चला था? 5 days. Water needed in all, we will multiply them. 1.75 liters multiply by 5. 1.75 multiply by 5. 5 5s are 25. 5 7s are 35 plus 2 37. 5 1s are 5 plus 3 8. And how many places are there after 0? 1 and 2. 2 places. So we will 1, 2, count 2 places and mark decimal here. So water needed in all is 8.75 liters. Our answer is 8.75 liters of water needed in all. One more example. Amit bought 1.92 meters of wire. He cut it into 8 equal pieces. What is the length of each piece? First of all, we will write statement. Amit bought wire, how much? 1.92 meters. 1.92 meters. How many pieces were cut? 8. So, pieces cut 8. Length of each piece. हर पीस की लेंथ कितनी है वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? वी विल डिवाइड इट,
राइट, इक्वल पीसेस में कट किया गया है और हर एक पीस की हमें लेंथ पता करनी है, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 1.92 meters divided by 8. Now because 8 is whole number itself, तो हमें decimal places shift करने की कोई जरूरत नहीं है. We will start dividing right away. 8 cannot be divided by 1, so we will put 0 here and here decimal will come. बिल्कुल decimal के ऊपर decimal. Now we will take 19 as number. 19 लेंगे. 8 2s are 16. Minus किया तो 3 मिला. Now bring this 2 down. 8 4s are 32. So the length of each piece is 0.24 meters. Answer is length of each piece is equal to 0.24 meters. This is our answer. Now next we are going to take rounding decimals. डेसिमल्स को राउंड ऑफ कैसे करना है वो सीखना है हमने, और वो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. एग्जाम्पल से समझेंगे, इजीली समझ में आएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 4.7587. इसको अगर हमने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो क्या करना होगा? 2 प्लेसेस के बाद थर्ड प्लेस हम देखेंगे क्या डिजिट है, थर्ड प्लेस पर क्या डिजिट है वो देखेंगे. अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो ये इसको हमने +1 कर देना है. मीन्स यहाँ पे हमारा सेकेंड डिजिट जो है वो 5 है डेसिमल के बाद, उसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.76. इसको राउंड ऑफ करने के बाद 6. लेकिन अगर इसको भी हम 2 प्लेसेस तक ही करेंगे और थर्ड डिजिट हम देख रहे हैं 1 जो 5 से कम है, तो हमें इस केस में यहां पर सेकेंड डिजिट को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है 98.25. इसको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के बाद हमें क्या मिला? 98.25. दिस इज आवर आंसर. तो की क्या है इसमें? 2 प्लेसेस तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम थर्ड प्लेस देखेंगे. अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो सेकंड प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे. लेकिन अगर थर्ड प्लेस पर, ये सिर्फ उस केस में है अगर हम 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, उस केस में अगर थर्ड प्लेस पर 5 से कम है डिजिट तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट एज इट इज हमें दोनों डिजिट्स लिख देनी है. सो आज हमने कन्वर्जन सीखा, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम्स करी, और लास्ट में हमने डेसिमल को राउंड ऑफ करना सीखा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.